السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اکثریت رائے سے فلسطینی معاملے سے متعلق 5 اہم قراردادوں کو کیا منظور۔ فلسطینی نمائندے ریاض منصور نے عالمی برادری سے کیا اظہار تشکر۔ ظالم اسرائیلی فوج غزہ کی زمین کو مسلسل کر رہی ہے تباہ، خطے میں نسل کشی جاری، مرکز المیزان برائے حقوق انسانی نے کیا خبردار۔ اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا، کابینہ نے بجٹ 2026 میں اسرائیلی افواج کے لیے $35 بلین کی بھاری رقم کو مختص کر دیا۔ ٹرمپ کی امن انعام پانے کی حسرت پوری ہو گئی، مسلسل دعووں کی جھڑی لگانے والے امریکی صدر ٹرمپ کو دیا گیا فیفا کا امن انعام۔ ایلون مسک کی AI کمپنی XAI کا چیٹ بوٹ گروہ تنازعات میں گھر گیا، ذاتی معلومات یہاں تک کہ گھروں کے پتے بھی کر رہا ہے ظاہر، ماہرین نے ظاہر کی فکر مندی۔ اور پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی انڈیگو کی کئی پروازیں آج ہفتے کے روز بھی منسوخ، صرف دہلی ایئرپورٹ پر آج ایئر لائن نے اپنی 106 پروازوں کو منسوخ کرنے کا کیا اعلان، مسافرین کو شدید مشکلات۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی عالمی خبروں سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اکثریت رائے سے فلسطینی معاملے سے متعلق 5 اہم قراردادوں کو منظور کر لیا۔ ان میں پہلی قرارداد فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے تھی، جس کی حمایت 151 ممالک نے کی۔ فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے بڑے پیمانے پر تائید کے لیے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی ہمدردی قابل قدر ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اکثریت رائے سے فلسطینی معاملے سے متعلق 5 اہم قراردادوں کو منظور کیا ہے۔ ان میں پہلی قرارداد فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کے لیے تھی، جس کی تائید 151 ممالک نے کی، 10 ممالک نے اعتراض کیا اور 14 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ دوسری قرارداد اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا کی سرگرمیوں سے متعلق تھی، جس میں اس کی مدت 3 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ اس قرارداد کی تائید 145 ممالک نے کی، جبکہ 10 ملکوں نے مخالفت کی اور 18 ممالک نے رائے دہی سے گریز کیا۔ تیسری قرارداد فلسطینی پناہ گزینوں کی جائیدادوں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے حوالے سے تھی، جس کی حمایت 157 ملکوں نے کی، 10 ممالک نے مخالفت کی اور 9 ملکوں نے رائے دہی سے گریز کیا۔ چوتھی قرارداد قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام اور مقبوضہ عرب زمینوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرنے والی خصوصی کمیٹی کے کاموں سے متعلق تھی، جس کی حمایت 88 ممالک نے کی، 19 ملکوں نے اعتراض کیا اور 64 ممالک نے رائے دہی سے گریز کیا۔ پانچویں قرارداد مقبوضہ فلسطینی زمینوں میں اسرائیلی بستیوں بشمول بیت المقدس اور مقبوضہ گولان سے متعلق تھی، جس کی حمایت 146 ممالک نے کی، 13 ملکوں نے مخالفت کی اور 17 ملکوں نے رائے دہی سے گریز کیا۔ فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے اس بڑے پیمانے پر تائید کے لیے ان ممالک سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی ہمدردی خاص طور پر فلسطینی پناہ گزینوں کے حوالے سے ظالم اسرائیل کے غاصبانہ حملوں اور غزہ اور مغربی کنارے میں جاری سفاکیت کے تناظر میں کافی اہمیت رکھتی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیل کا جنگی جنون ختم نہیں ہوا ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے بجٹ 2026 میں اسرائیلی فوج کے لیے $35 بلین کی بھاری رقم کو مختص کر دیا۔ کابینہ نے اسے باقاعدہ منظوری دی۔ دفاع کے لیے مجوزہ $28 بلین کے مقابلے اس مرتبہ 25% سے زیادہ کیا گیا۔ بجٹ کو ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جہاں نتنیاہو حکومت کو شدید مشکل ہے کیونکہ اسرائیلی حکومت کے اندر سیاسی اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیلی قانون کے مطابق نتنیاہو کو ہر حال میں مارچ سے پہلے بجٹ کی منظوری یقینی بنانا ہے۔ پارلیمنٹ سے بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل میں نئے الیکشن بھی کروانا پڑ سکتا ہے۔ مرکز المیزان برائے حقوق انسانی نے خبردار کیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج غزہ کی زمین کو مسلسل تباہ و تاراج کر رہی ہے، جو اس خطے میں جاری نسل کشی کے جرم کے دائرے میں ہے۔ یہ بیان عالمی یوم زمین کے موقع پر جاری کیا گیا، جو ہر سال 5 دسمبر کو یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے منایا جاتا ہے تاکہ زمین کی اہمیت اور صحت مند زمین کے لیے پائیدار وسائل کے انتظام پر توجہ دی جا سکے۔ سال 2025 کے اس موقع کے لیے صحت مند زمین صحت مند شہر کا نعرہ دیا گیا تاکہ شہری علاقوں کی تعمیر نو اور ان کی ترقی میں زمین کی حفاظت اور سبزے کو بڑھانے، مستحکم اور صحت مند شہروں کے قیام کی ضرورت اجاگر کی جا سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ جاریہ سال یہ موقع اس وقت آیا جب قابض اسرائیل غزہ میں ایک مکمل نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، جس میں زمین کی براہ راست تباہی بھی شامل ہے، چاہے وہ فوجی حملے ہوں،
खुदाई का अमल हो या फिर मलबे के ढेर या खेतों की तबाही, पानी के कुओं और निकासियाब के निज़ाम को भी तबाह किया गया है। मुकामी आबादी की सेहत को ख़तरा है। काबिल इसराइल मुसलसल मुख्तलिफ हथियारों और शदीद धमाकों के ज़रिए गज़ा पर हमले कर रहा है, जो ज़मीन को न सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं बल्कि उसके असरात ज़रई ज़मीन और माहौलियाती निज़ाम पर भी पड़ रहे हैं। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के मुश्तरका बयान में रफ़ा क्रॉसिंग एक तरफ़ा खोलने के लिए इसराइली बयानात पर तशवीश ज़ाहिर की गई। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दून, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़राए ख़ारिजा ने बयान में कहा कि इस इक़दाम का मकसद गज़ा पट्टी के रिहायशों को जमहूरिया मिस्र मुंतकिल करना है। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मनसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की हर कोशिश की सख्त मुखालिफत करेंगे। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर न करें। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों जानिब से खुली रहने पर जोर देते हैं। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के मुश्तरका बयान में मुतालबा किया गया कि गज़ा के शहरियों की आज़ादाना नक़्ल हरकत को यकीनी बनाया जाए। बयान में खित्ते में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की सताइश की गई और गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी पर जोर दिया गया और इसके अलावा इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया गया है। नोबल अमन इनाम पाने की हसरत में बिन रुके मुसलसल दावों की झड़ी लगाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप को फीफा का अमन इनाम आखिरकार मिल गया। वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ के दौरान ट्रंप को पहला फीफा अमन इनाम से नवाजा गया। खुद को मुसलसल अमन का सबसे बड़ा सफीर बताने वाले ट्रंप को यह इनाम मिला। फीफा के सदर जी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को मेडल और ट्रॉफी देकर एजाज से नवाजा और कहा कि इनाम दुनिया भर में अमन और इत्तेहाद की कोशिशों के लिए है। फीफा अमन इनाम से सरफराज होने पर ट्रंप ने हिंद पाक जंग समेत दुनिया के मुख्तलिफ तनाज़ात में अपने किरदार के भरपूर अंदाज में दावे किए। Football unites the world. To Donald J. Trump, President of the United States of America, in recognition of his exceptional and extraordinary actions to promote peace and unity around the world. Friday, December 5th, 2025. This is the certificate. It's yours. And you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you obtained it in an incredible way, and you can always count, Mr. President, on my support, on the support of the entire football community or soccer community to help you make peace and make the world prosper all over the world. Thank you very much, Mr. President. The floor is all yours. Thank you. Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, Johnny and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. The Congo is an example. Over 10 million people killed, and it was heading for another 10 million very quickly. And it just, you know, the fact that we could do that, India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started, just right before they started. It was going to be late, but we got them done, and it's such an honor to be with Johnny. I've known Johnny for so long. He's done such an incredible job, and I have to tell you, you've set new records on ticket sales, and not to bring that up, because we don't want to bring a thing like that up right now, but it's an awfully nice tribute to you and to the game of football, or as we call it, soccer, but football, and that is an amazing thing. The numbers are beyond any numbers that anybody, even beyond what Johnny thought was possible. Definitely. I want to thank, by the way, my family, my great First Lady, Melania. You're right here, and thank you very much. And I think you're going to have an event the likes of which maybe the world has never seen. Based on the enthusiasm that I've seen, I have never seen anything like it. We've had a tremendous relationship, working relationship with Canada. We have our Prime Minister of Canada there, and we have our President of Mexico. And we've worked closely with those two countries, and the coordination and friendship and relationship has been outstanding, and I want to thank you both very much, and your countries very much. But most importantly, I just want to thank everybody. The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well, and now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way.
मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के नए औकात मुकर्रर कर दिए गए। इदारे अमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक नए औकात कार के तहत मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त शब 2 बजे से नमाज फजर तक और दिन में वक्त 11 बजे से इशा तक का होगा। इदारे ने बताया कि ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फजर के बाद से दिन के 11 बजे तक है और इशा के बाद रात 2 बजे तक होगा। इत्तलात के मुताबिक मर्द ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद से इशा तक ज़ियारत कर सकते हैं, जबकि ख़वातीन जुमे को नमाज फजर के बाद से सुबह 9 बजे तक जियारत कर सकती हैं। एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI का चैटबोट ग्रोक इन दोनों तनाज़ात में घिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चैटबोट बेहद कम पूछताछ पर भी आम लोगों के घर के पते, राब्ते की तफसील और ख़ानदानी मालूमात भी शेयर कर रहा है। दूसरी जानिब प्राइवेसी माहिरीन ने इस मामले को लेकर गहरी फिक्रमंदी का इजहार किया। पेश है इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI का चैटबोट ग्रोक इन दोनों शदीद तनाज़ात में घिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चैटबोट बेहद कम पूछताछ पर भी आम लोगों के घर के पते, राब्ते की तफसीलात और ख़ानदानी मालूमात भी शेयर कर रहा है। फ्यूचरिज्म की तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में इंटीग्रेटेड AI मॉडल किसी भी पते को तलाश करने और बताने में ख़तरनाक हद तक सलाहियत रखता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ग्रोक सिर्फ मशहूर शख्सियात ही नहीं बल्कि आम शहरियों के भी ज़ाती पते को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ तक एक मामले में उसने बारस्टोल स्पोर्ट्स के फाउंडर डेव पुरेंटाय का दुरुस्त पता भी फ़ौरन दे दिया। इससे ये तशवीशनाक अमर साबित हुआ कि ग्रोक यही सलूक गैर मशहूर अफराद के साथ भी कर रहा है। जांच के दौरान पाया गया कि सिर्फ नाम या एड्रेस टाइप करने पर ग्रोक ने हैरानकुन नतीजे पेश कर दिए। 33 रैंडम नामों में से 10 के मौजूदा घर के पते, 7 लोगों के पुराने पते और 4 लोगों के ऑफिस के पते उसने फौरी तौर पर फराहम कर दिए। अगरचे XAI की पॉलिसी इस तरह के इस्तेमाल को गैर कानूनी बनाती है, लेकिन ग्रोक के माहिरीन जवाब देते हैं कि ये हिफाजती फ़िल्टर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इस दौरान प्राइवेसी माहिरीन ने इस मामले को लेकर और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी फिक्रमंदी का भी इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो की कई परवाज़ें आज हफ्ते के रोज़ भी मनसूख होती रहीं। ज़रा ने बताया कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एयरलाइन ने अपनी 106 परवाज़ों को मनसूख किया, जिनमें 54 रवानगी और 52 आमद की परवाज़ें शामिल हैं। जुमे के रोज़ इंडिगो की मुल्क भर में 1000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हुई, जबकि 4 दिसंबर को तकरीबन 400 परवाज़ें मनसूख करना पड़ा। पायलटों के लाजमी आराम, नाइट ड्यूटी से मुताल्लिक़ नए ज़ाब्ते नाफिज होने के बाद से इंडिगो की परवाज़ों में मसाइल चल रहे हैं और दिसंबर आते आते बड़ी तादाद में परवाज़ों की मनसूखी शुरू हो गई। एयरलाइन ने कहा कि फ़्लाइट शेड्यूल को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए 2 से 3 दिन तक बड़ी तादाद में परवाज़ें मनसूख की जा रही हैं। इस दौरान मुसाफिरों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। वो कैंसिल हो गए और उसके जगह पर कन्वर्ट करके दिल्ली से सिलचर जाने के लिए दूसरी फ़्लाइट के लिए हमको मैसेज मोबाइल में आ गया। तो वो भी बाद में वो 5 तारीख की थी तो वो कैंसिल हो गई। उसके बाद 6 तारीख को हमने किया तो ये भी कैंसिल हो गई है। अब हमको ये है कि जब फौजी आदमी होता है तो वो टाइम का पाबंद होता है और वो टाइम पर पहुंचना होता है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते हैं अपनी छुट्टी काट के तो उधर अफसर को अपने को जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि ना हमको जब यहाँ से जब दूर जाते हैं तो दूर से क्या बोलते हैं कि जो ट्रेन है वो भी डायरेक्ट मिलती नहीं है और फ्लाइट का भी अब यही समस्या आ गई है। 3-4 गुना जो ये किराया वसूल करते हैं, इतना हमारे अकाउंट में भी पैसा नहीं होता, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी ये 2 बार टिकट बनवाया, हमारा पैसा करीब 30,000 35,000 चला गया। अब इतना तो हमारे अकाउंट में भी नहीं रहता। अब हम जाएँ तो कैसे जाएँ? यहाँ ना कोई व्यवस्था दूसरी होती है, ना कोई दूसरी फ़्लाइट से हमको शिफ्ट करके चलो हमको टाइम पर पहुँचा दिया जाए, ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती हैं और ये बातें हम समस्या समझ लो कि फौजी की एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। जब तक फौजी अगर ये समस्या से जूझते रहेंगे तो हम दूसरों की क्या हम अपने सुविधा या सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। इसको थोड़ा इस समस्या को पहले फौजी की समस्या को सुलझाना चाहिए। जाना गुवाहाटी था, कोलकाता से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और सुबह 6:15 की फ़्लाइट थी। मतलब हम SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें टोटल 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और नियरली 1400 आइडिया सिलेक्ट हुए थे। और हमारा सेंटर जो था वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
में सिचुएटेड था और हमें वहाँ पर जाके परफॉर्म करना था। लेकिन इंडिगो हमने रिटर्न और जाने की दोनों की फ़्लाइट जो थी वो इंडिगो से ली थी। फ़्लाइट डिले होने के कारण अब हम वहाँ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मतलब और कोई भी पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन वे है ही नहीं। ट्रेन में तीन दिन लगते हैं और मतलब हमारा पूरा जो मेहनत थी, हमने पूरा 6-7 महीने जो प्रोजेक्ट के पीछे मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई है। मतलब अब हमारे पास कोई और वे नहीं है, वापस घर जाना पड़ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार मिलती है। मतलब कई बार तो बच्चों को 3-3 साल तक इसमें पार्ट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। हम पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ़्लाइट डिले होने के कारण कैंसिल हो जाने के कारण जो है हम नहीं जा पा रहे हैं अभी। मतलब हमारी टीम 6 जन की थी और हमारे साथ 2 मेंटर्स आ रहे थे, मतलब मेंटर करने के लिए, तो टोटल 8 जन थे हम लोग। सेम इंडिगो से फ़्लाइट थी। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप रिफ़ंड ले लो, लेकिन फ़्लाइट रीशेड्यूल भी नहीं होगी और दूसरा कोई पॉसिबल वे है ही नहीं। मतलब अब सारे हाथ खड़े कर दिए अब हमारा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अक्सरियत राय से फ़लस्तीनी मामले से मुताल्लिक़ 5 अहम करारदादों को किया मंजूर। फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज मंसूर ने आलमी बरादरी से किया इज़हार तशक्कुर। ज़ालिम इसराइली फ़ौज गज़ा की ज़मीन को मुसलसल कर रही है तबाह, ख़िते में नस्ल कुशी जारी। मरकज़ अल मीज़ान बराए हुक़ूक़ इंसानी ने किया खबरदार। इसराइल का जंगी जुनून ख़त्म नहीं हुआ। काबीना ने बजट 2026 में इसराइली अफ़वाज के लिए $35 बिलियन की भारी रकम को मुख्तस कर दिया। ट्रंप की अमन इनाम पाने की हसरत पूरी हो गई। मुसलसल दावों की झड़ी लगाने वाले अमेरिकी सदर ट्रंप को दिया गया फीफा का अमन इनाम। एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI का चैटबॉट गिरोह तनाज़ात में घिर गया। ज़ाती मालूमात यहाँ तक कि घरों के पते भी कर रहा है ज़ाहिर। माहिरीन ने ज़ाहिर की फ़िक्रमंदी। और प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो की कई परवाज़ें आज हफ्ते के रोज़ भी मनसूख। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर आज एयरलाइन ने अपनी 106 परवाज़ों को मनसूख करने का किया ऐलान। मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।